जीवन में by whose stripes जिसके कोड़े खाने you were healed. तुम चंगे हुए। Amen. Hallelujah. So, John 6:51, let me read it. I am the living bread which came down from heaven. यूहन्ना 6 उसका 51, यीशु ने कहा मैं वो जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। If anyone eats of this bread, यदि कोई इस रोटी को खाए he will live forever. तो वो सर्वदा जीवित रहेगा। And the bread that I shall give is my flesh, और जो रोटी मैं इस जगत को देता हूँ वो which I shall give for the life of the world. वो मेरा मांस है जो मैं इस जगत के जीवन के लिए देता हूँ। Amen. John 6:53. Then Jesus said to them, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. यूहन्ना 6:53, यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। And I will raise him up at the last day. और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। For my flesh is food indeed. क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। जब ईव ने उस फल को देखा तो बोला this is a good thing for it's a good thing for food. It's a good thing to eat. When Eve saw that fruit, उसने कहा ये सच में खाने के लिए अच्छा है। Amen. My flesh is food indeed, my blood is drink indeed. मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। He who eats my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. जो मेरा मांस खा मेरे लहू में से पिए मैं उसमें बना रहता हूँ और वो मुझ में बना रहता है। Amen. What is Jesus saying? It's a spiritual significance. यीशु क्या कह रहे हैं? ये एक आत्मिक महत्व है इसमें। He is not making us carnivores कि हम लोग मांस खाने लग जाएं किसी का। No, it's a prophetic picture. ये एक भविष्यवाणी की तस्वीर। जैसे आदम और ईव ने उस पेड़ का फल खाया और मृत्यु आई, यीशु मसीह वो क्रॉस जो जीवन का वृक्ष है, जब हम उस फल को खाते हैं, सो यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए वो फल बन गया। And when we partake of him, we have eternal life. Just as Adam and Eve ate that fruit and death entered, then Jesus became the fruit of life for us. So when we eat him, we have life, eternal life. So प्रभु भोज कोई ईसाई रीति रिवाज नहीं है। So Holy Communion is not a Christian ritual. जब भी आप प्रभु भोज ले रहे हो, आप जीवन के वृक्ष से खा रहे हो। Whenever you are eating from the Holy Communion, you are eating from that fruit of the fruit of the life. Amen. इसीलिए आज जब आप कम्युनियन लोगे एक अलग तरीके से लोगे। So today when you will take communion, it will be different. पाप खाने की वजह से आया। Sin came because of eating. और आज अनंत जीवन भी खाने की वजह से आया। And today eternal life has also come because of eating. अगर उस फल को खा के पाप का स्वभाव आ गया, तो इस फल को खा के धार्मिकता का स्वभाव आता है। If by eating that fruit the nature of sin entered, by eating this fruit the nature of righteousness enters. Amen. Hallelujah. Oh, praise God. कुछ सीख रहे हैं हम लोग? हाँ, मैं ये सीरीज हम लोग महीनों ले जा सकते हैं। There is, I usually don't share this because कलीसिया तैयार नहीं है इस मैसेज के लिए, but I feel you guys are mature. है ना? और मैंने आपको क्या बताया था, समय आ गया है जब हम परमेश्वर के राज्य की आदि शिक्षाओं से ऊपर उठकर अब परफेक्शन की ओर जाने लग जाए। And I told you it's time for us to leave the fundamental, the basic teachings of the Word of God and move into maturity. वरना हम यही बोलते हैं पाप मत करो, पाप मत करो, व्यभिचार मत। बहुत ठीक है, वो बच्चों के लिए अच्छा है। Otherwise you'll keep saying don't sin, don't sin, don't sin. That's okay for kids. जिस दिन आप जान जाओगे मुझ में एक नया स्वभाव है, पाप आपके ऊपर प्रभुता अब नहीं कर सकता, बाइबल कहती है, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो। The day you know you have a new nature, the nature of righteousness, you will know you are not under sin. Sin will not have dominion over you. Amen. So आदम कैसे लेके आया पाप? How did Adam bring sin? By eating खाने के द्वारा a fruit एक फल को from a tree. जो कि एक पेड़ से था।
Jesus brought life by becoming the fruit of life, hanging on that tree. यीशु जीवन अनंत जीवन लेके आया एक फल बनकर जो उस पेड़ पर टांगा गया था। हाँ, जो लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर था तो क्रूस पर अपने आप को क्यों नहीं बचाया? अरे वो आया ही था काट में लटकने के लिए कि वो जीवन के वृक्ष से हम लोग खा सके उस फल को। Today when people say when he was God, why didn't he save himself from that cross? He came so he would hang on it like a fruit so we can eat from him. Amen. हालेलुया। अभी देखते हैं जेनेसिस 2:21, उत्पत्ति 2:21। And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया and he slept. और वो सो गया। And he took one of his ribs and closed up his flesh in its place. तो उसने उसकी एक पहली पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। Actually, Hebrew स्क्रिप्चर में रिब नहीं है, Hebrew स्क्रिप्चर में साइड है। इब्रानी भाषा में इट्स साइड। ओके, देन द रिब मतलब वही शब्द है, वो रिब के लिए भी यूज होता है, वो साइड के लिए भी यूज होता है। देन द रिब विच द लॉर्ड गॉड हैड टेकन फ्रॉम मैन ही मेड इनटू अ वुमन। तो वो जो पसली यहोवा परमेश्वर ने निकाली थी उससे उसने एक स्त्री को बनाया। एक आमेन। सो परमेश्वर ने क्या किया? व्हाट डिड गॉड डू? ईव को बनाया। He made Eve. ईव कहाँ थी? Where was Eve? आदम के अंदर थी। She was in Adam. आदम ने ईव को जन्म दिया, पता है आपको? Adam birthed Eve. Did you know? फ्रॉम द साइड। From his side. अपने बगल से। साइड से आदम ने ईव को जन्म दिया। अपनी पसली में से Adam gave birth to Eve. Are you ready for the revelation? तैयार हो प्रकाशन के लिए? God caused deep sleep to fall upon Adam. परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। जब लाजरस मर गया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? लाजरस क्या कर रहा है? सो रहा है। When Lazarus died, Jesus said he is sleeping. ओके, रेडी? तैयार हो? जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, When Jesus died on the cross, when the last Adam went into deep sleep, जब आखिरी आदम भारी नींद में गया और एक जो वहां सोल्जर था, सैनिक था, उसने उसके साइड में भाला मारा, and there was a soldier who poked into his side. and his side opened उसकी and blood and water came. और लहू और पानी निकला। आप जानते हैं जब किसी का नया जन्म होता है, जब बच्चा नया जन्म होता है तो blood and water comes out. When a newborn is born, blood and water comes out. And from the side of Lord Jesus Christ, the new creation was born. The church of the living God was born. And और प्रभु यीशु मसीह की पसली से वो नई कलीसिया का जन्म हुआ, नई सृष्टि का जन्म हुआ। Amen. Amen. उसकी साइड से, जैसे आदम की साइड से उसकी ब्राइड आई, उसकी दुल्हन आई, यीशु मसीह की साइड से भी उसकी दुल्हन आई। Just as from Adam's side his bride was born, from Jesus' side his bride, his church was born. Hallelujah. Praise God. और उस दिन हमारा जीनोलॉजी बदल गई। अब हम पहले आदम में नहीं, अब हम मसीह यीशु में हैं। And that day our genealogy was changed. We are not in the first Adam, we are in Jesus. Amen. प्रॉब्लम ये है आज भी कुछ मसीह अपने आप को पुराने आदम की तरफ देखते हैं और उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे The हैं। problem is many believers still look at themselves as if they are from the first Adam and they are trying to fix it. Hallelujah. John 19:33 to 34. यूहन्ना 19:33-34। But when they came to Jesus and saw that he was already dead, परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, they did not break his legs. तो उसकी टांगें न तोड़ी। But one of the soldiers pierced his side परंतु सैनिक में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेजा, with a spear, एक बर्छे से, भाले से, and immediately blood and water came out. और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। हर एक चीज जो पवित्र आत्मा ने वचन में लिखी है उसका एक आत्मिक सिग्निफिकेंस है। इट्स अ प्रोफेटिक पिक्चर। Every detail that the Holy Spirit has captured in the Word has a prophetic image. Blood and water coming out is a sign of new birth. वो लहू और पानी जो दर्शा गया वो एक नए जन्म का चिन्ह है। उस समय At that time, कलीसिया का जन्म हुआ। the church was born. उस समय नए क्रिएशन का जन्म हुआ। At that time, the new creation was born. Amen. Amen. The church was born. उस कलीसिया ये का जो जन्म। आखिरी आदम है, This last Adam, परमेश्वर ने इसके अंदर जो हेवनली आदम है, इसके साइड से परमेश्वर ने हेवनली ईव को निकाला। from the side of the heavenly Adam, God took out a heavenly Eve. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Adam was